I'll go off. Welcome everyone to the Gargi Arya show, and today we have a very powerful guest with us. His name is Dr. Sandeep Gupta. He is widely recognized as Wealthy Sandeep. He is a distinguished wealth accelerator coach, TEDx speaker, certified financial planner, and author with over 15 years of experience in this financial industry. He has held significant roles in the renowned financial institutions like Max Life, SBI Cards, and so much more. And you know what? Today he is on a mission to make India the most financially educated country in the world, reflecting his deep commitment to community empowerment and financial literacy. So, thank you so much, Sandeep sir, for being here. It's an honor and a pleasure to have you. Thank you. Thank you so much, Gargi. You're doing wonderful job. Thank you so much, Gargi. Amazing. So my first question to you is what actually inspired you to get started on this mission? Like it's a huge mission. Thank you so much. Brilliant question, Gargi. And I really want to congratulate you the kind of energy and the kind of content and the kind of education you are going to all the other people in via your Instagram or YouTube channel. You are doing good job at your race. So congratulations to you. So I'll talk about myself. So I started journey in 2007, 8 as a banker, as a Max New York Life trainer, and then moved to the State Bank of India Credit Card Division, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, and Standard Chartered Bank. In 15 years, I have seen that there are a lot of people who are making a lot of money, but they are not able to manage it because when you work in a financial institutions, you know that every day people keep coming, they keep crying, complaining about credit card loan, home loan, personal loan, ये fraud हो गया वो. So I just thought that the financial education is a missing part. And in my personal life also, when I started my job was only for 7,500 rupees 15, 20 years back. And when I left my job, I was just making 75,000 rupees. Only in 15 years, we have grown only 10 times. Okay. So then I realized that there's a huge potential in me, which I was not able to use it. And the moment I got recognized that fact that I can teach people, make people learn whatever I have learned in last 15 years in banking and financial industry. And then when COVID hit, I started teaching people, people started appreciating, and then we started training people by putting into the system, making them aware about the personal finance, money management, behavioral phenomena about money, how they can come out of the loan, stock market, mutual fund, retirement planning, income tax, all those items. And then couple of years back, 2 years back, actually, I thought that why this should not be a curriculum in class 8 or 9 or 10 or 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. And that is what I incline that if we teach students or graduates who are coming out of the college or schools and they are started working, if we teach them that how they start making money, managing money, investing money, multiplying money, then 30, 40 years they will be keep practicing that one. And that's how this whole mission came, that how India can become one of the most financially educated country in the world. And one of the opportunity can be that how personal finance chapter can get included in the NCRT books or a curriculum in like physics, chemistry, you are reading history, you are reading how you can at least learn one chapter of personal finance. What is saving, what is investment, what is retirement planning, multiple streams of income, stock market, mutual fund, debt management, RBI, banking system, financial industry, and all those things. And that's how we have been being successfully doing that one even since last 4.5 years. So this is what it inspires me every day, that the common man of India should grow from lower middle class to middle class, from middle class to rich class, and rich class to wealthy class. That's how things are working, Gargi. Amazing. That's such a huge mission that you're working on. Thank you so much for the work you do. I literally believe in this statement that when you have something in you that you can share it with the world, it becomes a responsibility to share. So amazing work. Now, my next question to you is are there any mistakes, any three or four mistakes that people make in their personal finances when it comes to managing it? Yeah, Garg, brilliant question. It's a personal finance question. But people make a lot of mistakes because people are not aware about. If you are not aware about your eating habits, you will eat anything and it will have a repercussions in your health. Okay. If you are eating junk food, drinking cold drink, not sleeping properly, not doing meditation, yoga, exercise, walking, traveling, all those things, not playing, not moving your physically, it will have a repercussion after 3 to 5 years.
And once you are aware about your physical body, boss, you need to walk at least 2 kilometers. You need to drink water right time. You need to eat healthy food. Once you are aware, and then you start taking action against that. But the biggest challenge in Indian industry is right now, or for the matter of fact, across globe, people are not aware about finances. They only know how to make money, but they do not know how to save it, how to grow it, how to multiply it, how to invest it, and how to protect it. These are the five elements, and all five elements create a greater impact in your life. अगर आपको लगता है खाली आप पैसे ही बनाते रहोगे, सेव नहीं करोगे, तो बेकार है। करोड़ों रुपए बना लिए और एक गलती करी, करोड़ रुपए चला गया। प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर पैसे ग्रो नहीं कर रहे तो इन्फ्लेशन विल किल योर मनी। एंड इफ यू आर ऑल्सो नॉट मल्टीप्लाइंग मनी, इट मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहेंगी, तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा तो बेकार है। सो व्हाट पीपल आर मेकिंग, सो दीज आर द 5 स्टेप्स वेयर वी ट्रेन पीपल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। क्योंकि सब लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं जो पैसा नहीं बना रहा है। Only question is right now you are making 20,000, 30,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 10 lakh rupees. That's a different story. But question here we will need to be asking that what you are doing with that money. आपने पैसा बनाया तो उस पैसे के साथ आप करते क्या, ये इंपॉर्टेंट है। सो मेकिंग मनी इज द इजिएस्ट थिंग। मैं बोलता रहता हूँ दुनिया का सबसे आसान काम है पैसा बनाना। बोलो पैसा मिलेगा, सेल करो पैसा मिलेगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। and the people who will make money, they have to manage, because that is, and I have written this book called Wealth Mastery. इसमें मेरा पहला statement ही है, your personal finance is your personal finance responsibility. Can you read it? Read it. Your personal finance is your personal responsibility. Yes, absolutely. आपकी हेल्थ है, मैंने बुक में लिखा है वो वेल्थ मास्टरी में, क्योंकि आपको पता है आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी मम्मी आपको खाना दे सकती है, लेकिन शी कैन नॉट आस्क यू टू ईट ऑन द राइट टाइम। बाहर आप क्या करते हो, 12 घंटे अगर बाहर रहते हो। सो पर्सनल फाइनेंस, अगर मैंने पैसे बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी है, राइट। और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 5 साल के बाद में उसने बोल दिया मामला गड़बड़ हो गया, फिर क्या होगा? अगेन टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग, right? The question is right now very simple, that how critically you can educate people in terms of finances. So what people are making mistakes, they do not have any structure. उनको पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है। अब 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है, 50,000 सैलरी आ रही है, तो आप उसमें से 10% अपना हिस्सा निकाल करके अलग रख दो। सॉल इतना ही करना है आपको, एंड यू कीप इन्वेस्टिंग दैट। So can I share my journey? In 2007, I started working with a company called Max New York Life. अयोध्या, फैजाबाद, बरेली में मैंने काम किया, यूपी में। और वहां मेरी सैलरी 7,500 रुपए थी, 7,500 रुपीज। एंड आउट ऑफ 7,500 रुपीज एवरी मंथ आई वाज ओनली सेविंग 1,500 रुपीज। इन 2007 आई एम टॉकिंग अबाउट। So it was not very, क्योंकि as a bachelor you don't need so much amount of money. In 2007 I am talking about. And the same formula I applied when I started working in Delhi with with State Bank of India credit card division. My salary was 15,000 rupees, Nehru Place. I was saving 3,000 rupees, and I started investing in the mutual fund. और बहुत काबिल नहीं था, but एक discipline बनाया मैंने। 3,000 rupees was easy. And then every time कोई भी 3 से 4 म्यूचुअल फंड आप टॉप कैटेगरी के गूगल में जाओ, टाइप करो, स्टार्ट करो, खत्म, दैट्स ऑल। Then 2011, 12, 13, 14, I was working with the ICICI Bank. Salary was 35,000, 25 to 35,000. I started saving 4,000 rupees. कोटक महिंद्रा बैंक बैंगलोर में नौकरी करता था। ING वैश्य का नाम सुना होगा अगर आपके, राइट, इंटी सर्किल के पास में। I started making 45,000 rupees in Bangalore 2014, 15, 16, 17. I was saving 5 to 6,000 rupees. And then I left my job, Standard Chartered Bank, 2017, 18, 19, 20 तक मैंने काम किया, for 3.5 years. My salary was 65,000 to 75,000 4 साल में। I started saving 7 to 8,000 rupees and kept investing. This one discipline of my life made me financially free at the age of 35. बहुत बड़ी बात नहीं करी मैंने, लेकिन छोटी सी काम कर, राइट। प्लस दूसरी बात है, मिस्टेक पीपल, नंबर 2 पीपल में, दे डू नॉट हैव अ सिस्टम। उनको पता ही नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या है। सेकंड सिस्टम, दे डू नॉट हैव अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर पर्सनल फाइनेंस। वो लिखते ही नहीं पेपर पेन पे कि 1 लाख रुपए आए, उसमें दाल चावल चीनी चाय बिस्किट, हैदराबाद बैंगलोर चेन्नई गए, कहाँ पर खर्चा हुआ, किताब खरीदी, बच्चे का स्टेशनरी है, फीस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, क्लोथिंग है, इंटरटेनमेंट है, फूड है, पीवीआर है, आइनॉक्स है, कहाँ पर मैंने पैसा खर्चा किया आपको पता ही नहीं। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर मनी, जो कि हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ यू कैन बी अवेयर अबाउट एनीथिंग? हाउ यू कैन बी अवेयर अबाउट योर थॉट विच इज इनटेंजिबल? हाउ यू कैन थिंक अबाउट योर इमोशंस विच इज इंटेबल? पैसा इज द ओनली थिंग जो आप काउंट कर सकते हो, रख सकते हो, देख सकते हो। इमोशंस, थॉट्स, ये सब कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं, फिर वो तो सेकंड लेवल पर आता है। तो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट मनी, बट दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर। एंड थर्ड थिंग, दे डू नॉट ट्रैक। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे पैसा, कुछ नहीं होने वाला। दीज आर द थ्री थिंग। प्लस
वो लोग, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यार मैंने 1 करोड़ रुपए बना लिया, लेट्स प्ले दिस गेम, बिग गेम। नो, देयर इज नो बिग गेम, देयर इज नो स्मॉल गेम। क्वेश्चन इज राइट नाउ हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ, क्योंकि एक बार पैसा बनाना बहुत आसान है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। Hmm. और एक बार अगर आपने गलती करी, आपका 4 से 5 साल का सेविंग चला गया। आज द क्वेश्चन, कैन यू अफोर्ड इट आउट? और गलती आपकी भी हो सकती है और गलती दूसरे की भी हो सकती है, उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। मतलब कोविड हैपेंड 4 years बैक, all office got shut down, transport company was, yeah, travel company was done, okay? So if you do not have a 3 to 6 months emergency fund, what will happen to you? And if you have taken 1 crore rupees, 2 crore rupees loan, and you got sacked from your job, now still you need to pay the EMI and you do not have a job. Do Yes. you hear me? So it's a emotional balance. All those things comes under personal fund. These are the couple of mistakes which people are making, and because these are the mistakes which is not being taught to you in school, and you keep repeating the mistake, because I am the father of my home. If I do not know, my father was not knowing, my daughter will not learn, और पूरा खानदान ऐसे चलता रहता है. And that's why if one person in a family is educated, I can tell you my life is set, and that's what my mission. How financial education can reach to every household in the country, that is what my mission has become. Yeah. I think I am also learning this for the first time. Like कभी इस perspective में किसी ने बताया ही नहीं है. So I think thank you so much, Sandeep sir. You are going to give a lot of bulwarks to me as well and all the people who are going to watch this. My next question to you is, as you said, discipline, right? So how actually can somebody get into this discipline of saving and managing their money? Because एक बार discipline they start but they are not able to stay consistent in it. Lovely, perfect. Thank you so much, Gargi. Beautiful question. Discipline cannot be taught to you. Discipline has to be practiced. Saving has to be practiced. Commitment has to be practiced. Commitment आपको नहीं सिखा सकता कोई. Yes. लेकिन इसका एक तोड़ भी है कि let's consider you are going to school from class 1, 2, 3, 4, 5, 20 years, you at least 15 years you go to school and college. Are you not consistent? Yes. Nobody is pushing you, रोज जाओ. आपके पापा मम्मी ऑफिस में जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको कोई बोलता है क्या रोज ऑफिस जाओ? बॉस सुबह कॉल करता है कि आ जाओ 8 बजे? Hmm. बोलता है क्या? नो. No. क्यों? आप नहाते हो, धोते हो, इसके बाद में आप जाते हो, भगवान की पूजा करने लगते हो, आपको उनको डिसिप्लिन सिखाता है? You are Hmm. practicing discipline. Yes. Nobody can teach you nobody can teach you discipline. It has to be practiced. Now, can you give a system? School is a system, office is a system, boss is a system. Once you are part of the system, automatically discipline comes in your life. Yes. You do not go for gym, you do not go exercise नहीं करते हो, but you take a membership and you take one person along with you who can be your friend, who is having the same wavelength. यार अच्छा, आपको भी सेहत सही करनी है, मुझे भी करनी है, चलो दोनों लोग मेंबरशिप लेते हैं और दोनों लोग 8 बजे से 8:30 बजे करेंगे, खत्म. टाइम बना दिया, अकाउंटेबिलिटी बना दिया, पैसा उसको दे दिया, जिम वाला भी कॉल करेगा, पैसा दे दिया, कुछ स्टेक पर है, अभी दोनों लोग जा रहे हो, 3 महीने बाद आप बॉडी मस्त. Hmm. Yes. Structure is missing. Oh, I will go tomorrow. You will never go tomorrow. Hmm. Oh, I will say next one. You will never do that one. And question is right now, people want to do big things. Never. I did not do anything in my life big. I always do a small things. If I cannot go for half an hour gym, but can I go for only 5 minutes walk this week? Can I go next month only next week 10 minutes walk? That's all. इतना ही करना मुझे और कुछ नहीं करना. Do you know approximately 11 to 13 kilometers every day I walk. Wow. In my busy schedule, I can show you from my phone. 11 to 30, 11 to 13,000 steps every day. 8,000 is normal for me. Weekly 8,000, 5,000, sometimes 13,000. Can you see it? Yes. Can you see it right now? Yes. 11,000. Fine. And it is not about only 1 month. 6 months I am doing consistently. 7,000, Wow. 8,000, 12,000. Even if I travel approximately 15 to 20 days in a Hmm. month or Yes. 7, still it's not about what you know, it is about what you practice. So let's consider somebody started a job, 10,000 rupees salary, 20,000. I think 30,000 rupees अभी इंडिया में नॉर्मल आदमी को सैलरी मिलता है, 15, 20,000, 30,000 मिलता है. शुरुआत करते हो आप 21, 22, 23 पे. Okay, now, but if you decide, boss, 10% of my money has to go in mutual fund. Hmm.
That's all. And then you give instruction to your mutual fund company कि भाई ये 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए निकाल करके मेरा साइन है ये, तो हमेशा डालता रहा है, मेरे से पूछ भी मत. Hmm. नाउ दिस सिस्टम विल वर्क. बैंकर विल नॉट आस्क यू. अपना क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जा रहा है, मैं भी फ्री, वो भी फ्री. अब आप बोलोगे नहीं, आज बरसात हो रही, मेरे पास चेकबुक नहीं है, सैलरी नहीं है, ये मंडे है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, होली है. नो, यू विल नॉट आस्क, बिकॉज दैट्स अ सिस्टम. Yes. एंड एक बार सिस्टम करा, 30 साल सेट. 30 साल समझते हो क्या होता है? पूरी जिंदगी निकलती है आपकी. Hmm. तो ये वाला. और दूसरी बात है, लोगों को पता ही नहीं कि बॉस, पैसा बनाना एक दूसरी कला है. पैसा मैनेज करना, ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, इन्वेस्ट करना, प्रोटेक्ट करना दूसरी कला है. Yes. 15 साल आपको बढ़ाया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और कॉमर्स. ये सब टेक्निकल स्किल है. कुछ भी आप जिंदगी में करोगे, पैसा बनाओगे इन स्किल से. क्या करोगे आप? ऊपर लेकर के जाओगे क्या हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री? क्या करोगे? यू विल बी यूजिंग दैट नॉलेज टू मेक सम प्रोडक्ट और सर्विसेज, and so that you can sell and you can make money. That's the objective of the education system. Yes. Now you have been trained in 12 years how you can put your skill into place and make money. Hmm. Now you Yes. got the output as a money. Now you do not know what to do with that money. और आपको लगता है अच्छा पैसा आएगा तब मैनेज कर, नहीं कर पाओगे भाई. बीबी आएगी तब मैनेज करेंगे? नहीं, पहले अपने को मैनेज करना पड़ेगा. नौकरी मिलेगी तब मैनेज करूंगा? नहीं, पहले मैनेज करना पड़ेगा. जब जिम जाऊंगा तब कर लेंगे? नहीं, पहले मैनेज करना पड़ेगा. वी हैव नॉट बी टॉट. और ये कहाँ से आ रहा है? अपने पेरेंट्स से आ रहा है, क्योंकि उनको भी लगता था जब ज्यादा पैसा बनाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा. मेकिंग मोर मनी इज नॉट अ सोल्यूशन. हाउ यू कैन मैनेज मनी is more important. The moment you start managing that one, universe will give you more money. Do you know why I became India's fastest wealth coach, fastest growing wealth coach in 3 years only? Because I have been practicing for last 15 years what I Yes. teach to. But you are seeing result in last 3 years, 4 years. But I have been practicing personally in my diary. Personally in my diary, I have been in 2013. I'll show you 2013, 2003-4 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 2002 से कि पेपर पे कैसे लिखना है, कैसे करना है. कैन आई शो यू? कैन यू रीड Yes. द Yes. डेट? मार्च 2002. कैन यू सी इट? Yes. Can see it. 2002 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अभी क्या चल रहा है? हमको लग रहा है तुम पैदा भी नहीं Hmm. होगे. Yes. 2001. कैन यू सी 2001? Yes. Wow. एंड आई एम नॉट टॉकिंग. और ये पूरी गंदी सी डायरी बन गई है क्योंकि 20 साल पहले, 25 साल पहले हाँ. करी. यू हियर मी? Yes. 2000 मई 2004 देख रही हो? Yes. जनवरी 2004. एवरी, क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट वन. Hmm. What you practice, that's why I'm so convincing on my technologies, on my commitment. और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है. 20 साल प्रैक्टिस करोगे तो आप भी चैंपियन बन जाओगे. Yes. Whatever. And then I have been calculating my net worth calculation. मैं net worth calculation करता हूँ हर महीने, आपको पता है. तो net worth calculation भी मेरी बढ़ रही है. और मैं 2007 से कर रहा हूँ. सॉरी 2018 से कर रहा हूँ. तो it is not about in a day I am doing. It is Hmm. about what I am doing since last 4, 5, 7 years. I can show you one thing. 2018 में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, और उस प्रोग्राम में 9 मार्च 2018 को मैंने शुरुआत करी थी अपना नेटवर्क कैलकुलेशन शुरू करने का. आपके ऑडियंस को मैं ये नेटवर्क कैलकुलेशन दे दूंगा एज अ गिफ्ट, सो बी देयर. ओके, Oh. यहाँ पर 2018 में देख रहे हो आप, 2018 9 to 10 Yes. तब मैंने शुरू करा था. मेरी पूरी नेटवर्क थी 5 लाख रुपए. और Wow. इसके लिए 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आज तक लास्ट के 66 मंथ्स में एक भी महीना मेरा खाली नहीं गया. Amazing. एंड डू यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स? 30 मिनट एक महीने में. आपको लगता है मेरे पास इतना, मैं बिजी हूँ, 30 मिनट नहीं निकाल पाता हूँ अपने जिंदगी के लिए? Amazing. It is very inspiring. Thank you so much for sharing. Because I think every single thing जो आप बता रहे हो, it's like हमें कभी बताया ही नहीं है उस चीज के बारे में. Not even us as teenagers and not even the people who are at the adult age. कैन आई टेल यू वन थिंग गार्गी? Yes, sir. आई मेकिंग दैट स्टेटमेंट यू कैन नॉट गेट अवे. कभी बताया नहीं गया, मुझे भी नहीं बताया गया था. Hmm. और मेरे घर में तो कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है. आप तो हाँ. दिल्ली में रहते हो. सम पीपल आर वर्किंग राइट नाउ, दे कैन स्पीक इंग्लिश. मेरे पूरे खानदान में कोई इंग्लिश नहीं आती है, कोई ग्रेजुएट, डॉक्टर, लॉयर, एमबीए प्रोफेसर नहीं है. Hmm. अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बट 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं. तो जब आपको पता है एक वर्ड होता है इनकम, एक वर्ड होता है सेविंग, एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, तो आप में क्या था जो आपने उसकी रिसर्च नहीं करी? Hmm. वेरी Yes. इजी, मुझे बताया नहीं गया. Hmm.
आपको भी नहीं पता था ना कपड़े कैसे पहनने हैं, बट somebody was wearing the cloth. Now you have practiced it. Now you are beautiful. Nobody has taught you how to start the podcast. Is it right or wrong? Yes. Because you now no, because the YouTube is the biggest university today. Yes. Do you get me? Yes. I go merciless. क्योंकि बाई सेइंग दैट स्टेटमेंट कि किसी ने नहीं बताया, यू आर सेइंग दैट कि अच्छा मैं गरीब रहूंगा जिंदगी भर, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, Yes. गुड जॉब, वेरी गुड। लेकिन आप 10 साल बाद ब्लेम किसको करोगे? कैन यू ब्लेम योर मदर, फादर, आंटी, अंकल, गवर्नमेंट? नो, क्योंकि No. यू आर पुअर, इफ यू आर रिच, यू आर रिच। सो व्हाट वी हैव इनसाइड, आई हैवंट टेकन केयर, इट मींस दैट आई वाज नॉट सीरियस। हेल्थ के बारे में आपको कोई बताएगा क्या कि आपको कब खाना है, कब नहाना है, कब पूजा करनी है? बताएगा क्या कोई? आपका नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Yes. और आप देख भी रहे हो इतने लोग एक्सीडेंट हो रहा है, अ, उनकी तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल, आपको बताना पड़ेगा क्या कि अच्छा खाना खाना है? Mhm. रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरी, हेल्थ Yes. इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेल मी, योर मदर कैन गिव यू बेस्ट फूड ऑन प्लेनेट अर्थ, बट हु हैज टू ईट? I. और अगर 4 आइटम रखते हैं, उसमें कुछ ऐसा भी आइटम रखते होंगे जो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं एक बार टेस्ट के लिए, ठीक है, बट इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बेकार है। Hmm. What we are bringing on table, what our commitment for our life, what our commitment for my family, my mind, for my body, for Hmm. my soul is important। क्योंकि 20 साल के Absolutely. बाद में आप यूं ही बोल सकते हो, ओ मैं, मेरी मम्मी ने बताया नहीं था मेरे को अच्छा खाना खाना है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, हॉस्पिटल जाओ। व्हाट Yes. इफ, Got it. Amazing. So thank you so much for giving such a new perspective. My next question to you is, like how to actually set a realistic budget. आपको like आते होंगे ऐसे questions. How can we set a personal realistic budget? रियलिस्टिक बजट का मतलब क्या होता है? आप अपनी लाइफ स्टाइल चेक करो। लेट्स कंसीडर यू आर लिविंग इन Hmm. दिल्ली, आई एम लिविंग इन बैंगलोर, समबडी इज इन पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, नागपुर, नासिक, Hmm. कहां पर भी रह रहा बंदा, आपको ये सोचना है पहले, आप एक महीने का गोल बनाइए। गोल क्या बनाइए? आप अपने घर में हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंटी, सब लोग घर में बैठो, जितने भी लोग हैं, 4 लोग, 5 लोग, उनका बोलो कि तुम्हारा पर्सनल खर्चा कितना है। Hmm. वाइफ को पूरा किचन दे दिया कि आप किचन का खर्चा बताओ मेरे को कितना है। किचन में सब कुछ आता है। किचन में क्या क्या आता है? दाल, चावल, चीनी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, पानी का बजट। अब उसके बाद में बच्चों का क्या क्या खर्चा हो रहा है, बच्चे का एजुकेशन पे, मेडिकल एक्सपेंस पे, पेन पेपर ले रहे हो, स्टेशनरी ले रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हो, बच्चे के स्कूल में पार्टी जा रहे हो, कुछ ड्रेस खरीद रहे हो, देर आर लॉट ऑफ बच्चों के। Hmm. Yes. अब इसके बाद में मम्मी का एक्स्ट्रा खर्चा क्या है? रिलेशनशिप में भी आपका हैप्पी बर्थडे, वहां पर जाओगे, 200 रुपए का गिफ्ट दोगे, नहीं दोगे क्या? Hmm. 300 रुपए का आप ऑटो करोगे, कैब करोगे, Hmm. 5,000, तो 1,000 रुपए का आप कोई भी अटेंड करो जाके, नॉर्मल खर्चा है। Hmm. साल भर में 2 से 3 आप शादी मनाते हो, साल भर में 3 से 4 आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो, 2 से 3 मैरिज एनिवर्सरी, तो 7-8 फंक्शन होते हैं आपके घर में। कैन यू अवॉइड इट? No. नो। तो देर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर मंथली इन नेचर, देर आर some expenses which are quarterly in nature, there is something, some expenses which are yearly in nature। फेस्टिवल, दिवाली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, मम्मी का हैप्पी बर्थडे, अंकल का हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सब एनुअल एक्सपेंसेस हैं। एक बार लिखो, आप बैठो कि कितना है पूरा साल भर का। मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए लगता है खाली मेरे को ट्रैवल करना। ट्रैवल में कितना जाते हो? रोज तो ट्रैवल नहीं करते हो, लेकिन 3 महीने में आप नैनीताल गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, मसूरी गए, थाईलैंड गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, लंदन गए, तो एक साल में एक बार जाते हो, 2 बार जाते हो। इसका पूरा आपने एक साल वाले एक्सपेंसेस लिख लिए, उसको डिवाइड करा 12 से। Hmm. और महीने के एक्सपेंसेस, आपका महीने का खर्चा क्या है? जियो का, एयरटेल का बिल, गैसोलीन, पेट्रोल का, कार का, इलेक्ट्रिसिटी का, बच्चे की स्कूल फीस, मम्मी दवाई अगर आती है तो, ये 7-8 एक्सपेंसेस जो है ये मंथली एक्सपेंसेस हैं। Hmm. कुछ डेली एक्सपेंसेस हैं, घर में रोज दूध आता है, घर में रोज वेजिटेबल आता है, राशन रोज नहीं आता, राशन 7 दिन में, 15 दिन में एक बार हाँ. आता है, राइट? ये कुछ मंथली बजट है, कुछ ईयरली बजट है, इन सबको एक साथ निकाल लिया। मंथली वाले का मंथली रखा, क्वार्टरली वाले का क्वार्टरली को 3 से डिवाइड कर दिया, और Hmm. ईयरली वाले को 12 से डिवाइड कर दिया। Hmm. अब आपको पता चला कि एक महीने में हमको इतना पैसा चाहिए। Hmm. आई कैन टेल यू, इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, 90% ऑफ योर इमरजेंसी विल गो अवे। नहीं तो बहुत बार होता है, अरे आज फोन टूट गया, 10,000 चला गया, आज फैन खराब हो गया, एसी खराब हो गया, घर में होता है, आज हाँ. पानी का नल खराब हो गया, 300 रुपए वो बंदा लेकर गया, हो रहा है घर में सबके। Yes. ईश्वर की कृपा है, मैं ये ऐसा करता हूँ जो हमारे घर में इमरजेंसीज नहीं आती, Hmm. बिकॉज आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग ऑन पेन एंड पेपर, एंड पीपल डोंट प्लान इट। Yes. तो आपको क्या करना है, बजटिंग क्या करना है आपको इस तरीके से। आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियरली। Yes. ट्रैवलिंग का प्लान है, मेडिकल का प्लान है। अभी आप हर दिन कपड़े नहीं खरीदते, 3 महीने में एक बार Hmm. खरीदने जाते हो। अभी मेरे को इवेंट में जाना है, 20,000 का सूट खरीद लिया, शर्ट खरीद लिया, चश्मा लगा Hmm. लिया, रोज चश्मा नहीं पहनते, साल भर में एक हाँ. बार पहन लिया, वाइफ को आपको गिफ्ट देना है, जो भी है, आप पूरा
बनाओ पेपर पेन पे। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग बैठना नहीं चाहते हैं, Yes. लोग भागना चाहते हैं। वो मेरे को कोई सीधा तरीका बता दीजिए, सीधा तरीका होता तो मैं आपको सिखा रहा होता, मैं खुद ही अपना रहा होता। Hmm. तो Yes. आपको काम करना पड़ता है, हस्बैंड के साथ बैठो, अंकल के मतलब जितने भी लोग घर में हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं घर में, Hmm. बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उनके साथ बैठो, मम्मी पापा के साथ बैठो, उनका देखो क्या है। और मैं बोलता हूँ तो मनी इज नॉट अ गेम, मनी इज द गेम विच कैन नॉट बी प्लेड अलोन, मनी इज अ फैमिली गेम इफ यू डू नॉट प्ले अलोन विद द फैमिली। क्योंकि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा भी होगी, घर में सब लोग पैसे बनाते हैं, एक कोई बर्बाद कर रहा होगा, और कोई एक अच्छा बंदा होगा, वो कुछ भी करके पैसा बचा लेता है, Hmm. मम्मी टाइप के लोग। तो Yes. क्वेश्चन क्या है, घर में सब तरीके के लोग हैं, और एक बंदा होगा खाली पैसा, पापा लोग जो होते हैं खाली पैसा बनाने में ही उनको दिलचस्पी होती है। कोई बच देर आर सम पीपल, घर में वेस्ट करता है कोई पैसा, कोई बचाता है, कोई स्पेंड करता है, कोई अर्न करता है। तो ये चारों लोग जरूरी है घर में। Yes. लेकिन चारों जब तक एक टेबल पर बैठ करके बात नहीं करेंगे 10 मिनट का, और जिंदगी में एक बार कन्वर्सेशन करना है, क्योंकि आलू प्याज का भाव रोज नहीं बदलता है, आपके स्कूल की फीस रोज नहीं बढ़ेगी, अगर Hmm. बढ़ती है 2%, 4%, 5% क्वार्टरली, Hmm. तो एक बार Yes. आइडिया हो, उसको 5% से 10% से इंक्रीज करते रहो, खत्म। ऐसा नहीं तो आज इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 आया, अगले साल 6,000 का आ गया, ऐसा नहीं Hmm. होता। अभी शर्ट हमारी 3,000 रुपए की है, 2,000 रुपए की, ऐसा नहीं कि 25,000 की हो गई। Hmm. 200 रुपए, 100 रुपए आगे पीछे तो कोई कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, बट वंस यू हैव ओवरऑल व्यू अबाउट योर फिनेंसेस, इट इज इजी फॉर यू टू बजट इट, खत्म। Yes. और क्या बताऊं मैं, ये तो कॉमन सेंस था जो मैंने बताया अभी तक, कुछ भी रॉकेट साइंस बताया। Amazing. Great. Thank you so much, sir, for explaining such a nice way. आपने बिल्कुल सही बोला कि सब लोग भागना चाहते हैं, कोई एक बार बैठकर बना ले, प्लान कर ले, then they can still run away with a lot of planning. So I think that is very great point. Next thing, अभी अगर we talk about the money mindset वाले part पे, so what is the correct mindset that we need to have towards money? Like बार बार अगर हमारी self talk ही ऐसी है, I don't have money, मेरे पास limited ही है, तो how does it impact? So according to you, what would you like to advise? Brilliant question. You are wherever you are because of your money mindset and because of your belief. Your belief defines your life. Until unless you do not change your belief, it cannot happen. I was having a great view, मतलब बिलीव किया यार कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं पहला पहला बंदा हूँ अपने मैं पूरे खानदान का पहला बंदा हूँ जो नौकरी कर रहा हूँ। Okay. खानदान सोचते क्या है, जिसमें 200-300 लोग हाँ. होते हैं, Yes. तो इसका मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, तभी तो Hmm. नौकरी नहीं कर रहा है। Hmm. सो व्हेन आई केम कि यार बिजनेस में बहुत पैसा बनता है, और मैंने देखा भी था, फिर नौकरी में गया तो यार चलो अच्छी जाओ नौकरी है, 5 स्टार में रहते हो, ऑफिस होता है बढ़िया, टाई बेल्ट सूट पहन करके जाते हो, लोगों से बात करते हो, हाय हेलो अंग्रेजी बोलते हो, सब ड्रामेबाजी करते हो आप, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नो, दिस वाज द बिलीफ कि यार शुरुआत 7,000 से 10,000, 15,000, फिर आप 5 साल में एक्सपीरियंस होते हैं, 10 साल में एक्सपीरियंस, तब आपका तनख्वाह बढ़ता है, सब बिलीफ बिलीफ है। देर आर सम पीपल हु आर मेकिंग मोर मनी देन आई एम मेकिंग इन अ 15 साल की नौकरी के बाद में, वो पहले दिन से बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपका एग्जाम्पल लेते हैं, अब अभी कितनी 15, 17, 18, कितने, व्हाट इज योर एज? 17. 17 में आप पॉडकास्ट करो, मैं 37 में आपसे बात कर रहा हूँ, 38 में, Hmm. बिकॉज यू गॉट अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। लेकिन आपके तरीके से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो उनका बिलीफ ही नहीं है कि मैं कैमरा पे बोल सकती हूँ, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग बैड, आई कैन नॉट स्पीक टू संदीप, बिकॉज हिज बिलीफ। सो मनी इज ऑल्सो हैविंग बिलीफ, आई कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, दोनों क्या दिक्कत है? जो Hmm. लोग पैसा नहीं बनाते वो कामचोर है, पेपर पेन पे लिखो। क्योंकि मनी इज अ फॉर्मलेस सब्सटेंस। अभी आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट इनवाइटेड मी, आई एम कमिंग ओवर हियर, नाउ यू विल बी अपलोडिंग दिस। मैं आपको बताता हूँ आप क्यों यहाँ पर आई हो। आप ये वाला अपलोड करोगे, लोग मेरे बारे में जाने, आपके बारे में जानेंगे, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदेंगे, क्लियर? या तो फिर Yes. यूट्यूब पर अपलोड करोगे, यूट्यूब उनको पैसा बनाएगा। कहाँ Hmm. से आया ये फॉर्मलेस सब्सटेंस से आया। Hmm. You did not pay me anything, I did not pay you anything, but we are having the conversation. Money happens in conversation. Hmm. मनी हैपेंस इन योर कन्वर्सेशन। आप बातों में ही पैसा बनाते हो, और क्या करता है आपका बॉस, क्या करता है? मनी हैपेंस इन योर कन्वर्सेशन। सब कुछ जो है ना, और मनी हैपेंस इन योर बीइंग, आपके होने में ही पैसा है। Hmm. Yes. तो नाउ यू हैव टेकन वन एक्शन, नाउ यू आर गेटिंग 1%, 2%। अब इस तरीके से बात करेंगे तो पैसा बनेंगे। तो आपका बिलीफ है, इसके बाद में मैं पैसा नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता, जब ज्यादा पैसा बनाऊंगा तो लोग ज्यादा आ जाएंगे। देखो मैंने लिखा भी है, मनी इज अ गेम, देखो जो मैं बोल रहा हूँ Yes. ना, एग्जैक्टली मैंने चीजें लिखी, पढ़िए इसको। Money is a game. Are you playing with your family or are you playing alone? कोई गलत बात बोली मैंने? Hmm.
तो पॉइंट क्या है ना कि लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। उनको क्या लगता है कि कोई मैं पैसा बनाऊंगा, कोई बंदा आएगा वो हमारा पैसा मैनेज करेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो कोई काम हो जाता। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ होलिस्टिकली यू कैन थिंक। हम्म। एंड द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड कि मनी के बिलीफ, कि अब बिलीफ कैसे फॉर्म होता है। अगर आप विलेज कभी गांव में रही हो, नहीं, अभी तक नहीं, बट कभी गए हूँ। कभी गई हो वहां पर, अगर 200 रुपए दिन में बनाते हो तो मस्त जिंदगी रह सकती है। हम्म। लेकिन दिल्ली कलकत्ता मुंबई में अगर 2000 बनाओगे तो भी नहीं रह सकती हो ढंग से। तो गांव के लोगों के लिए 200 रुपए इज बिलीफ सिस्टम इज ग्रेट। हम्म। सिटी लाइक मुंबई दिल्ली, 2000 रुपीज पर डे इज नॉट अ ग्रेट अमाउंट। यस। न्यूयॉर्क चली जाओ, अमेरिका चली जाओ, दुबई चली जाओ, कम से कम आपको 10,000 रुपए रोज दिन का चाहिए होगा खाली जिंदा रहने के लिए। सही बात। यस। अब जो बंदा गांव में रहा है उसका बिलीफ अगर आप दिल्ली में लेकर के आओगे, अरे वहां पर 200 रुपए बनाता था, यहाँ पर 200 रुपए में खाली मेरे को ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच मिल रहा है, मेरी पूरी जिंदगी कैसे चली गई। बिलीफ कॉन्ट्राडिक्टिंग। यस। क्योंकि उसने वो दुनिया ही नहीं देखी। उसको लगेगा, आप सोचो ना, आज ट्रेनर और कोच या फिर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में या फिर बड़े बड़े लोग 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बना रहे हैं। आप गांव वाले को बोलोगे नहीं नहीं इतना पैसा नहीं बनता है। हाँ। क्योंकि यस। उसका बिलीफ क्या है कि 2,000, 4,000, 6,000 बनता है। अगर आप दिल्ली में हो, आपकी सैलरी मोटा मोटा 10 लाख से 20 लाख रुपए की होती है। अगर हम्म। यही बात 10 लाख के 20 लाख वाले सैलरी वाले को बंदे को बोलोगे न्यूयॉर्क में जाकर कि तुम्हारी 10 लाख, 1 करोड़ रुपए सैलरी हो सकती है, उसका बिलीफ एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम्म। क्योंकि उसने वो यस। दुनिया नहीं देखी है। यस। What that belief is shaping, your environment is shaping your belief. हम्म। Now यस। you are right now you are getting connected to me. Do you know? Because your belief and your environment is such that you can connect to the trainer and coaches. यस। But 20, 30 people in your classroom cannot get that opportunity because they are not in that environment. हम्म। Once now talking to me, we charge 5 lakh rupees for one keynote speech, but you are talking to me free. यस। Because of your environment, you are getting access to my communication. यस। How you did that? By putting yourself in that environment. And it has taken the courage, it has taken money, time, commitment, focus from you, which nobody has taught you, यस। and which nobody has apart from your 20 kids, 30 kids in your school. Now, when you look at me, अरे संदीप सर कोचिंग में 4 साल से आए हैं, he is making a lot of money, मैं भी 2 साल की हो गई, मैं भी बना सकती हूँ. Now your belief is changing right now because your belief changes when in 4 ways: the way you speak, the way you listen, एंड टू whom यू फॉलो. डुप्लीकेशन बोलते हैं उसको. पहला होता है कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन. आपके मम्मी पापा ने बोला है अच्छा पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, आप नौकर बन गए. यस। अब नौकर 5 करोड़ तो बनता नहीं है. कितना मिलता है? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख. यस। तो जब उसका पोटेंशियली आप कुछ भी कर लो, आप 5 करोड़ की सैलरी नहीं बना सकते हो नौकरी में 10-20 साल में. कितने लोगों की 5 करोड़ सैलरी साल की बताओ? बहुत ही कम. 50 करोड़, 50 करोड़ की सैलरी होती है ना, नहीं। खाली आप लोगों की होती है. हाँ। लेकिन हमारे लोगों के, हमारे आसपास के बारे में किसी की सैलरी 5 करोड़, 10 करोड़ होती है नहीं होती है. हम अपने एनवायरमेंट के बारे में करें तो क्या होता है? पहला आप वर्बल कम्युनिकेशन, क्या आप बात करते हो पैसे के बारे में. मनी इज वेरी इजी टू कम और वेरी डिफिकल्ट टू कम. मनी इज द रूट ऑफ ऑल द इवल, और मनी इज बहुत, हम तो बोलते हैं दुनिया में सबसे पवित्र काम पैसा बनाना है, और वो पवित्र काम मैं करता हूँ. अमेजिंग। क्यों? क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं बनाता तो लैपटॉप नहीं खरीद पाती, जियो नहीं खरीद पाती, ये ईयरफोन नहीं खरीद पाती, चश्मा नहीं लगा पाती, पढ़ा नहीं पाती, बेकार है जिंदगी में. क्या करती? गरीब रहते हम लोग. तो वो पवित्र काम मैं करता हूँ, और दूसरे को पैसा बनाना सिखाना उससे भी पवित्र काम है. यस। तो जब मुझे पता चल गया ये पवित्र काम है तो मेरे को अब एंग्जाइटी नहीं है. मुझे पता है मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और मेरे को वैल्यू दूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा. सिंपल. और जब मैं वैल्यू दूंगा तो उस बंदे की जिंदगी में बढ़िया बात होगी, वो भी वैल्यू देगा, वो भी पैसा बनाएगा. एंड दैट इज हाउ दिस होल इकोनॉमी वर्क. रिच लोग पुअर, रिच लोग बड़े खराब होते हैं. जिस स्कूल में आप पढ़ती हो वो रिच ने बनाया है. जिस रोड पे चलती है उसका नाम होगा, वो भी किसी बड़े नाम पर होगा. आप जिस गार्डन में जाते हो वहां पर किताब लिखते हो, जो किताब आज पढ़ रही हो आप, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की, वो भी किसी रिच ने लिखा होगा. यस। ट्रेन बड़े लोगों ने बनाया है, एरोप्लेन बड़े लोगों ने बनाया है, गरीब लोगों ने बनाया क्या है? यस। तो गरीब गरीब आपकी मेंटेलिटी है. क्योंकि सब लोग पहले गरीब थे अगर पैदा हुए थे हम लोग. व्हाट यू हैव क्रिएटेड आउट ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट. एंड ओनली यू कैन क्रिएट जब आपके अंदर कमिटमेंट होगा, और कितनी हाई एनर्जी लेवल पर हो गए आप.
तो मनी एक बिहेवियर है, हाउ डू यू हैंडल योर मनी इज इंपॉर्टेंट। 15 साल की उम्र से आप पैसे बना रही हो, 17 ईयर्स में पैसे बना रही हो, 15 साल में तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि दुनिया में होता क्या है। हम्म, तो इस एज में अगर हम पैसा नहीं बना रहे, फिर कौन सी एज में बना पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मनी का बिलीफ सिस्टम जो ना ऐसा डीप रूटेड है। और क्योंकि हमारी सोसाइटी आती है स्पिरिचुअल वाली, कनेक्टिविटी वाली, ओ हम्म, भगवान देख लेगा, भगवान नहीं देखेगा भाई, तू ही भगवान है, तू ही देख ले पहले। यू हियर मी। यस। बिकॉज यू आर, जब आप बोलते हो हम ब्रह्मास्मि और फिर भूल जाते हो, फिर बोलते हैं, भगवान देख ले, नहीं देखेगा। हम्म, So, can I take the responsibility of my actions? Can I take responsibility of my communication? My internal, दो तरीके के कन्वर्सेशन होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। व्हाट आई स्पीक फ्रॉम माय माउथ। पैसे के बारे में बहुत मुश्किल है, पैसा सेव नहीं होता है, इन्वेस्ट नहीं होता है, मेरे साथ चीटिंग होती है। कम्युनिकेशन आउटसाइड, इंटरनल कम्युनिकेशन जो खाया जाता है यार, बहुत सारा लोन है, बहुत सारा ईएमआई है, किसी को बोल नहीं सकते हो, हस्बैंड वाइफ को, बॉस को, किसी को बोल नहीं सकते हो, अंदर खाया जाता है। हम्म, तो वर्बल कम्युनिकेशन, आप क्या बोलते हो, डुप्लीकेट, किसको डुप्लीकेट करते हो। अगर आप अपने अपने कंजूस पापा को डुप्लीकेट करोगे तो वही बन जाओगे, मम्मी को डुप्लीकेट करोगे तो, अगर आप अपने वही इस दोस्त को कॉपी करोगे तो आप वो बन जाओगे। किसको यस। देख करके आप पढ़ रहे हो, डुप्लीकेशन। तीसरा चीज जो होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे बिहेवियर में होती हैं। हम्म, बिहेवियर का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए बन गया, मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगा। हाँ। राइट, मेरे पास 1 लाख रुपए का पहले, आजकल क्या होता है, 4 साल पहले बेबी नौकरी करता था तो बोनस मिलता था, तो बीवी पहले ही बोल देती थी इस बार सोफा लाना है, इस बार ट्रैवलिंग करना है, 1 लाख रुपए मिलने वाला है। सही बात है। या फिर सबसे पहले लोग जाते थे, नौकर लोग क्या करते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज हाउ आई स्पीक। नौकर का मतलब हम्म, होता है एम्प्लॉई। हाँ, हाँ। इसलिए मैं ज्यादा बेइज्जती करने के लिए बोलता हूँ। तो जब जब आप एम्प्लॉय होते हो तो जैसे आपकी नौकरी बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप जाते हो बैंक में और ये चेक करने के लिए कि हमारी लोन की ईएमआई कितनी बन सकती है। हम्म, भगवान ने आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाई है और आप फिर से लोन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या डिफाइन कर रहे हो भगवान के लिए हम्म, कि यार मैं गरीब ही रहूंगा। I got 1 lakh rupees. Can I invest into my education? Can I invest in the books, reading books, going seminars, and can I make 10 lakh rupees from 1 lakh rupees? Rather buying sofa, Mercedes, ये सब अच्छी बात है, खरीदो, लेकिन जब तक आप अपने को ना बना लो तब तक मत खरीदो। तो ये सारे कन्वर्सेशन आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आपसे कौन बात करता है, कैसे बात करता है, किस तरीके की बुक पढ़ते हो। आपको जब तक अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करोगे तब तक आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा, जब तक आपका बिलीफ चेंज नहीं होता है तब तक नहीं। हम कैसे चेंज करते हैं, कैन आई टेल यू हाउ आई चेंज बिलीफ। हमारे हम्म, यहाँ एक क्लब चलता है, उसका नाम है वेल्थ क्लब। वेल्थ क्लब बाई संदीप गुप्ता लिखोगे यस। यूट्यूब में, सुबह 6:15 बजे से होता है। मैं आपके सारी ऑडियंस को 7 दिन का वेल्थ क्लब फ्री देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या तो सुबह 6:15 बजे से लेकर के 7 बजे तक खाली आपके पर्सनल कम्युनिकेशन पर बात होती है, पर्सनल माइंडसेट पर बात होती है, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात होती है, मनी के बिहेवियर पर बात होती है। जब आप वो ऐसे 100-200 लोगों के साथ में बात करते हो, देखते हो, समझते हो, सीखते हो, उनको हम्म, देखते हो यार, ये बंदा हमारे साथ आया था, 100 रुपए दे करके, 500 रुपए दे करके, ये इसने 10,000 रुपए बना लिया, मैं भी बना सकता हूँ। फिर दूसरा बंदा बताता है, तीसरा बताता है, फिर आप बनाते हो, आप इंस्पायर करते हो। लोगों के पास हम्म, में कोई बंदा किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा है पैसे के मामले में। नो बडी, यस। अपने खानदान में कोई नहीं है जो इंस्पायर कर सके हमको पैसा बनाने में, सेव करने में, ग्रो करने में, मैनेज करने में। सही बता रहा हूँ कि नहीं। आई एम टेलिंग यू हम्म, 90% जनसंख्या के बारे में। आई यस। एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानीज और टाटाज, नो, हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली, जहां से हम लोग हम्म, बिलोंग करते हैं। तो हम्म, जब आपके पास में ऐसी कम्युनिटी होगी, आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट होगा, आपका बिलीफ चेंज होगा, द मोमेंट योर बिलीफ इज चेंज योर लाइफ इज डन। आप ग्रो कर जाओगे। यस। एंड दैट इज व्हाई वी टीच इन वेल्थ एक्सेलरेटर हब कि हाउ योर मनी के ब्लूप्रिंट चेंज हो जाए, मनी के बिहेवियर चेंज हो जाए। आपको किस तरीके के मैं ट्रैकिंग सिस्टम दे सकता हूँ। मैं तो अपनी, ये देखा है आपने जिंदगी में कभी, नहीं। पिगी क्या है ये, बैंक। पिगी बैंक देखा है कि नहीं। हाँ, हाँ, देखा है। बचपन में देखा होगा। यस। ये मैं सिखाता हूँ लोगों को, सबकी दादी ने, मम्मी ने, पापा ने दिया होगा, लेकिन कोई हाँ। प्रैक्टिस नहीं कर। आप प्रैक्टिस कर रही हो क्या। नहीं। पहले दिन मैं ये बताता हूँ लोगों को कि भाई अगर तुमसे 5 लाख नहीं सेव हो सकता है, 5 लाख नहीं सेव हो सकता है, 10,000 सेव नहीं हो सकता है, 2 रुपए सेव हो सकता है, यस। करो। करो, कौन मना कर रहा है। बिकॉज मनी हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, हेल्थ हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, वेल्थ हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, कम्युनिकेशन हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, कॉन्फिडेंस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, वेल्थ हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। इफ यू हम्म, प्रैक्टिस healthy habits you become healthy. If you practice wealthy habits you become, वेरी। do you practice wealth? यस। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और अपने मम्मी पापा लोग बेवकूफ थे क्या, अपने को गुल्लक देते थे बचपन में, दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, दिया है। उनको सब पता था लेकिन उनको साइंस नहीं पता थी, क्योंकि दादा दादी ने बताया, उनके दादा दादी ने बताया, हम लोग भाग रहे हैं।
और हमको लगा अरे आज तो पेटीएम का जमाना है, तो क्यों रिच नहीं हो? हाँ, तो क्यों नहीं रिच हो बताओ ना? बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू हार्ड वर्क। और कितना टाइम लगा है 2 रुपए निकाल करके इसमें डालने में? कितने साल लगेंगे? 10 साल, 20 साल, 1 सेकेंड? yes, Now, when you put 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees into that one, you are putting intention into the universe. Boss, I am serious to save money. Can you help me, God? I am right now, whatever मेरे पास है मैं शुरू कर रहा हूँ उससे। आप मेरे को सपोर्ट करो। अभी मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कैसे होने वाली है, मेरे पास खाली भी 5 लाख रुपए है, मैं लिखता हूँ। भगवान मेरे को हेल्प कर सकते हो क्या? नाउ यू आर शोइंग योर कमिटमेंट टू यूनिवर्स। बॉस, दिस पर्सन इज रेडी टू सी वेरी सीरियस टू बिकम रिच। चलो भगवान इसको दे देते हैं। तो सारे काम आपको नहीं करने, कुछ ऊपर वाले को भी करने दो ना। हाँ, yes, Do you hear me? तो ये सिस्टम्स है। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, आपको इजाद करने पड़ेंगे। और अगर नहीं कर पाते हो, द पीपल लाइक मी हु टीचेस पीपल। मैं तो 99 रुपीज चार्ज करता हूँ, 3 दिन 6 घंटे सिखाता हूँ। hmm, आप सोचो, 100 रुपए में एक टाइम का खाना नहीं खा पाते हो आप। आई टीच पीपल, 7 घंटे सिखाता हूँ। आओ सीखो समझो, क्योंकि एक बार आप सीख लिए ना, आपका पूरा खानदान चेंज हो जाएगा। डू यू नो हाउ मच मनी वी मेक? मेरा पूरा खानदान मिलकर के नहीं मिलाता है। yes, लेकिन अगर मैं वो एक्शन नहीं लेता तो, और ये आपके साथ भी होने वाला है। जितना मेरे पास नॉलेज है, पूरा पूरा गांव नहीं बनाता होगा। hmm, तो एक आदमी, क्योंकि आप पूरी जिंदगी सेट हो ना। 30 साल मजे करो, एक बार आपने डिग्री पढ़ ली, एक बार आप डॉक्टर बन गए, एक बार लॉयर बने, अब 30 साल उसी पर काम कर सकते हो ना। रोज थोड़े डॉक्टर बनते हो। yes, और बिकमिंग डॉक्टर, बिकमिंग लॉयर, बिकमिंग इंजीनियर, बिकमिंग एनीबडी इज डिफिकल्ट प्रोसेस। yes, लेकिन एक बार बन गए 15 साल की उसके बाद में फिर 40 साल आप खा सकते हो ना, कम से कम। यू हियर मी? yes. दैट्स ऑल। Very powerful message. Great. Thank you so much, sir, for sharing all these insights. My next question to you is like a personal one. I see आप बहुत energetic हो, right? And you are you are very energetic, having the busy schedules. You are taking out time for yourself, for your family members. So how do you actually balance everything in your life? और क्या आपको, what is the vision which makes you up every single day? थैंक यू गार्गी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बिजी नहीं हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ। और दूसरी बात है कि जो लोग बोलते हैं बिजी है ना, सबसे तो उन्हीं के पास टाइम रहता है। Yes. बिकॉज वो अपना मुखौटा नहीं खोलना चाहते हैं। हाँ, और आई कैन टेल यू, यू स्पोक अबाउट वन थिंग, बैलेंस। बैलेंस इज नथिंग। एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में बैलेंस कुछ नहीं होता है। आपको पता है, कल शाम को मैं मूवी देखने गया था, रात में 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक मूवी देखी मैंने। कौन सी मूवी थी वो? कल की। तीन okay. घंटे की मूवी देखी, और उसके 4 घंटे पहले हमारी टीम सेशन ले रही थी, वर्कशॉप था, सब कुछ था। Hmm. मूवी देखने गया, क्योंकि सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से पहले बीबी को देख लूंगा, फिर बच्चे को देख लूंगा, Hmm. आपके साथ में इंटरव्यू, अभी स्कूल में जाऊंगा। मैं सुबह उठता हूँ, जितने भी बजे उठता हूँ, मर्सिडीज लेता हूँ, डॉटर को छोड़ने जाता हूँ स्कूल, फिर आता हूँ ब्रेकफास्ट करता हूँ वाइफ के साथ में, फिर आता हूँ अपना कुछ थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, फिर खुद लेने जाता हूँ अपनी बेटी को स्कूल से। तो बिजी तो मैं भी हूँ, बट Hmm. आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस भी ऐसा नहीं है, अगर हम मेहनत करते। 3 साल मैंने बैलेंस नहीं किया, पहले 3 साल, 2 साल पहले बिजनेस में आई वॉज पैथेटिक। बट राइट नाउ मनी गिव्स यू बैलेंसिंग पावर। Yes. आस्क मी व्हाई? बिकॉज जब आपके पास, पहले मैं नौकर था तो 70,000 बनाता था, Hmm. तो 12 घंटे में बेचता था। अभी मैं 2 घंटे में काम करके 70,000 बना सकता हूँ। तो मेरे पास 8 घंटे बाकी रहेगा ना, 8 घंटे में मैं मूवी देख सकता हूँ, बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल सकता हूँ, वाइफ को रेस्टोरेंट लेकर के जा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, मम्मी के चरण स्पर्श कर सकता हूँ, और क्या चाहिए आपको? Hmm. लेकिन 2-3 साल अगर आप तपस्या नहीं करोगे, आपकी जिंदगी बैलेंस है क्या? जब स्टूडेंट में हो, नहीं है ना। नहीं. 24 घंटे पढ़ती हो, लेकिन इसके बाद में बैलेंस होगी जिंदगी में, आपकी बैलेंस नहीं होगी जिंदगी में। Hmm. जो सबको आप लेकर चलना है। ऐसा नहीं होता 10 साल पहले हेल्थ पे काम करेंगे, 5 साल वाइफ पे, 5 साल बच्चे पे, 5 साल बिजनेस में, नहीं होता। पहले आप इतना मेहनत कर लो, पैसे बना लो, Hmm. और टाइम खरीद लो। Yes. क्योंकि बैलेंसिंग इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टाइम। बिकॉज टाइम ही एक ऐसी चीज जिससे प्रॉब्लम है जिंदगी में लोगों को। रिलेशनशिप इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टाइम। Time. मेडिटेशन नहीं कर पाते बिकॉज आपके पास टाइम नहीं, हेल्थ पे काम नहीं कर पाते तो टाइम नहीं है। आप तीन खाना नहीं बढ़िया खा पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मैं दिल्ली में गया था कपल ऑफ वीक्स बैक, मैंने देखा कि लोग वहां पर कार चला रहे हैं, कपड़े टाई भी कार में पहन रहे हैं, ब्रेकफास्ट में वो भी कुकीज खा रहे हैं, बिस्किट, कार चलाते चलाते। आई हैव सीन। सुबह Hmm. लोग मेट्रो में जा रहे हैं, भर रहे हैं मुंह में। मतलब दिस इज लाइफ यू वांट? Hmm. एंड कैन आई टेल यू द ट्रुथ, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ फॉर 15 years। Yes. 15 years।
बट क्रिपिंग अबाउट दैट वन, और उनको लगता है वो सत्य हो गया। वो सत्य नहीं है, आपने दुनिया देखी ही नहीं है, आप कंफर्टेबल हो गए उस चीज से। Yes. आप कंफर्टेबल, डू यू नो, एवरी मंडे आई गो एंड एंजॉय माई लाइफ। एवरी मंडे 11-12 बजे मैं मूवी देखने जाता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ घूमने, और लोग मंडे को ऑफिस जाते हैं। 3 साल, Yes. लेकिन 15 साल में रोज मंडे को जाता था, सैटरडे संडे को काम करता था। सो बैलेंसिंग इज नथिंग, कुछ भी बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको एक अप्रोप्रिएटली आप जिंदा रह जाओ। Hmm. एक बार आपने पैसा बना दिया, यू कैन बाई टाइम। अभी मैं एकदम फ्री हूँ, अभी मैं एकदम फ्री हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ट्रैवल, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। सब कुछ खरीद लिया ना मैंने, टाइम पढ़ सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ, रिट्रीट पे जा सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, फैमिली में जा सकता हूँ। कभी पहले सोचता था कि कब मैं जाऊं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ट्रैवल फ्लाइट करके 3 महीने पहले बुक करता था। अभी रात में करता हूँ, सुबह। कभी कभी तो ऐसा होता है कैब में बैठता हूँ, तब मैं बुक करता हूँ, तब तक एयरपोर्ट पहुंचता हूँ। Hmm. बिकॉज मनी इज नॉट अ बरियर राइट नाउ। Yes. कैन आई बाई टाइम? तो पहले बैलेंस हटाओ, बैलेंस हटाओ, मेहनत करो, पैसे बनाओ, और अगर नहीं आता है सीख लो, Yes. किताबें पढ़ लो, यूट्यूब में रिसर्च करो। फ्री में, दुनिया में सबसे आसान, आज की जिंदगी में रिच बनना है। आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा रिच आसान बनना है, क्योंकि Yes. यूट्यूब पर है किताबें। 100 रुपए की किताब मिलती है, पता है आपको? 200 रुपए की किताब मिलती है। यूट्यूब चैनल फ्री है, अथाह है, बट डिफोकस इतना हो गया है। तो बैलेंसिंग इज नथिंग। बैलेंस मत करो, और फैमिली को भी मैनेज करो, रिलेशनशिप को मैनेज करो। अगर रिलेशनशिप खराब होता है ना, पैसे की वजह से सब सही हो जाता है। हेल्थ अगर खराब होती है ना, पैसे की वजह से सही हो जाएगा। Hmm. गारंटीड, मैं बता रहा हूँ। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि आप मर ही जाओ, Hmm. बट फोकस एरिया हैज टू बी मनी फर्स्ट, देन हेल्थ। अब तुमको कोई नहीं बता सकता, 10 मिनट तो आप वॉक कर ही सकते हो ना, हाँ. 2 मिनट अपनी मम्मी से बात कर ही सकते हो ना, Hmm. 5 मिनट अपने बच्चे को हैप्पी बर्थडे बोल ही सकते हो ना। Yes. खत्म रिलेशनशिप। ऐसा तो नहीं होता अच्छा तुम बैठ गए मैं बैठ गया, चलो 2 घंटे देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। Hmm. I hope that I have answered your question. And what Yes. inspires me, what my inspiration is right now, I do not want to make, this is my commitment कि भाई अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप कर रहे हो, अगर आपका ये कमिटमेंट है, can I put my commitment also? Hmm. When Yes. you are committed, I am committed, both of us grow, and both of us grow. My state grows, my city grows, my country grows, my world grows. And when we start looking for the world, जो हमारा vision है, how India can become one of the most financially educated country in the world, ये हवा में नहीं बन रहा है। We have a Hmm. concrete plan. We are working towards that one. It will take 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. I do not know. But can I work towards that one? Hmm. तो दैट पुट्स मी, योर मिशन पुट्स यू, कि बॉस आपको नींद नहीं आती है, आप काम करते रहते हो। मैं कैश फ्लो गेम खिलाता हूँ रॉबर्ट कियोसाकी का, बैंगलोर में करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ। दिल्ली में Hmm. हमारी, अभी मैंने वेल्थ वॉरियर रिट्रीट किया है गोवा में। आप पिक्चर देखो, कम्युनिटी एंगेजमेंट करो, लोगों को देखो। एज अ टीचर, एज अ कोच, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं लोगों को इंस्पायर करूं उनके एक्शन लेने पर, क्योंकि एक्शन उन्हीं को लेना है। Hmm. किताब उनके पास भी है, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। मेरी जिम्मेदारी है how I can inspire them to read the book, how I can inspire them to take action, how I can inspire them to explore, Google it, research it, and that is what the true leadership is all about, Gargi. Exactly. Love it. So, today I have learned the meaning of true leadership, and so much bulbons are happening. Let's say somebody wants to connect with you and they want to join any of your workshop, your community. So, what is the process for it? So you can go and Google about wealthysandeep.com वेबसाइट है, वहां पर जाइए। प्लस इसके अलावा आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू ऑल योर ऑडियंस, एक मैं 3 दिन का वर्कशॉप जो होता है उसका मैं फ्री आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। लिंक नीचे हुआ है, और इसकी नेटवर्क कैलकुलेशन जो शीट है मैं आपको भेज दूंगा। वो एंड टुडे ज्वाइन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम वेल्दी संदीप पे, वी चार्ज 99 रुपीज, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। और पैसे पे करके आओ। जब पैसे पे करके आते हो तो आप ज्यादा समझते हो, ज्यादा Yes. सीखते हो, एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपए में कुछ जिंदगी में नहीं होने वाला है, बट Yes. वेंस यू लव इट, आपका पूरा खानदान के पहले ऐसे बंदे होंगे। और मेरा मिशन ये भी है कि हाउ यू कैन बिकम द फर्स्ट मिलियनियर ऑफ योर फैमिली। Hmm. 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बार बन गए, अगले 40 जनरेशन सेट। Yes. That's all. So anybody who wants to connect, I will be giving my free landing page link. You can put it there. Join my workshop. Research about me. मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वेल्दी संदीप, सीखिए, समझिए, रिसर्च करिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर ही अगर फ्री में कंटेंट देख लोगे ना, तो आपको लगेगा ये क्या बात करता है। बिकॉज मनी इज नॉट अ टेक्निकल फिनोमिना, इट्स अ बिहेवियरल फिनोमिना। हाउ डू यू Hmm. बिहेव अराउंड मनी? Yes. That's all. So this is gift from my side.
for your audience that workshop is absolutely free. Wealthy Sandeep पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं गार्गी. Yeah. Thank you so much, Sandeep sir, for this amazing precious gift. And to everyone, I hope कि अभी जो आप देख रहे हो, it is not even we can call it teaser because आपकी पूरी movie बन रही है आपकी community में, and everybody should get the chance to experience it. So without any brainer, without any thinking, just go ahead and join the workshop. And the last question I want to ask you is any last message for all the people who are watching this? Yeah, last message is a simple thing यार, अपने हंगर जगाओ, क्योंकि हम आपको खाना दे सकते हैं लेकिन आपको भूख नहीं दे सकते हैं. Yes. भूख तभी बढ़ती है जब आप बड़ा देखते हो. तो बड़े लोगों के साथ में कैसे रहना शुरू कर सकते हो ये सोचो आप. उनके पे करना पड़ेगा, बुक पढ़ सकते हो, डीवीडीज ले सकते हो, जो भी आप कर सकते हो करो, हंग्री बनो जिंदगी. एंड नोबडी हैज अचीव्ड एनीथिंग ऑफ सिग्निफिकेंट विदाउट पुटिंग समथिंग एट स्टेक. कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा आपको. आर यू पेइंग दैट वन? और आपका जो लास्ट मैसेज मेरा रहेगा, अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करो. अपने अपनी जिंदगी की जितनी भी कमाई हो उसका 10% हिस्सा अपनी एजुकेशन पे लगा लो. नेटवर्किंग पे, राइटिंग द बुक, रीडिंग द बुक्स, गोइंग सेमिनार्स, वर्कशॉप, ये आपने कर लिया ना, वट एवर आई एम राइट नाउ बिकॉज ऑफ माई बुक्स रीडिंग कैपेबिलिटी, दैट्स ऑल. और बहुत ऐसा नहीं कि मैं पूरी किताब चाट डालता था. 2 पन्ने रोज पढ़ने का, सो जाने का, अगले 3 साल में 5 लाख बनाने का महीने का, खत्म. सिंपल. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है. आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ यू नीड टू स्पीक, हाउ यू नीड टू बिहेव, हाउ योर बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट, बिजनेस चेंज, ये सारी चीजों पर पढ़ो. एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्किंग. पैसा बनाओ, become the first millionaire of your family. Let's make India one of the most financially educated country in the world by 2030. ये मेरा मिशन है. मुझे लगता है कि जल्दी से ही हो जाएगा. The kind of people you are going to be taking my mission also to the place. Yeah, thank you so much, Gargi. Amazing. Thank you so much, Sandeep sir, for being here. It was a pleasure to have you. Many bulbons and many new insights. And I'm sure people, like they have got a new perspective today. And thank you so much, everyone, for seeing it. Make sure you register for the workshop, and I'm going to see you in the next episode. Thank you. Bye. Thank you so much, Gargi.